नमो लोये सौहरिहन्ताणं नमो लोये सौहृदानं नमो लोये सौभागिर्यानं नमो लोये सौज्यायानं नमो लोये सौत्रिकावती सावनं ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यं जयन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः मङ्गलं भगवान् यो मङ्गलं गौतमोऽग्नि मङ्गलं कुन्कुण्डार्यो विजेन्द्रमोसुमङ्गलं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या तथा स्थिति स्वभावाय भवाय सर्वः विभाव निदाता કળશ અમૃત ભગવાન અમૃતચંદ્રાચાર્ય રચિત કળશ અમૃતનો સ્વાધ્યાય આપણે કરી રહ્યા છીએ. એમાં સર્વ વિશુદ્ધ જ્ઞાન અધિકારમાં કળશ 14 સુધી સ્વાધ્યાય પૂરો કર્યો છે. આજે 15મો કળશ એટલે કે સળંગ કળશ 207નો સ્વાધ્યાય શરૂ કરીએ છીએ. સમયસારમાં કળશ 206 પછીથી કળશ 207 કહેવામાં આવ્યો છે. બૌદ્ધની જે માન્યતા છે, ક્ષણિકવાદની માન્યતા છે, એનું મિથ્યાત્વ પણ દર્શાવ્યું છે અને એ જ વાતને હજી અહીંયા 207માં પણ વિશેષપણે સમજાવે છે. અહીંયા કહે છે કે ફરી ક્ષણિકવાદને યુક્તિ વડે નિષેધતું આગળની ગાથાઓની સૂચના રૂપ કાવ્ય કહે છે. શ્લોકાર્થમાં કહે છે કે વૃત્યંશોના અર્થાંત પર્યાયોના ભેદને લીધે વૃત્તિમાન અર્થાંત દ્રવ્ય અત્યંત સર્વથા નાશ પામે છે. એવી કલ્પના દ્વારા અન્ય કરે છે અને અન્ય ભોગવે છે એવો એકાંત ન પ્રકાશો. વૃત્યંશો એટલે પર્યાયો, પર્યાયોના ભેદને લીધે વૃત્તિમાન એટલે દ્રવ્ય, પર્યાયોના ભેદને લીધે દ્રવ્ય સર્વથા નાશ પામે છે એવી કલ્પના બૌદ્ધ મતની છે. તો એવી કલ્પના દ્વારા શું ખ્યાલમાં આવે છે કે અન્ય કરે છે અને બીજો ભોગવે છે, તો એવો એકાંત ન પ્રકાશો. બીજી એક વાત છે, અગાઉના કળશમાં પણ એ વાત હતી અને એની એક સ્પષ્ટતા છે કે જો એમ માનવામાં આવે કે આત્માનો તો નાશ થાય છે પણ એનો સંસ્કાર એ મુક્ત જાય છે, તો તે પણ યથાર્થ નથી. બૌદ્ધ મત પ્રમાણે એ દ્રવ્યનો નાશ થાય, આત્મા નાશ પામે અને છતાં બીજી પર્યાય ભોગવે છે, તો એ પૂર્વની જે પર્યાય હતી એનો સંસ્કાર એ મૂકી ગયું. માટે તો કે છે કે એમ પણ બની શકે નહીં કે આત્માનો નાશ પામે છે અને સંસ્કાર મુક્તો જાય છે, તો તે પણ યથાર્થ નથી. આત્મા નાશ પામે તો આધાર વિના સંસ્કાર કેમ રહી શકે? વળી કદાપી એક આત્મા સંસ્કાર મુક્તો જાય તો પણ તે આત્માના સંસ્કાર બીજા આત્મામાં પેસી જાય એવો નિયમ ન્યાયસંગત નથી. કેમ કે બૌદ્ધ મતમાં તો એવી માન્યતા છે કે એક સમયે જે કરનારો જે છે એ આત્મા જે છે એ પછી રહેતો નથી અને જે ભોગવે છે એ બીજો આત્મા છે. એટલે આ માન્યતા મિથ્યા છે. એમાં એ દ્રવ્યને માનતા નથી, પર્યાયને જ એ આત્મા માને છે. એટલે આવી ભૂલ થાય છે. અહીંયા પંડિતજી જયચંદજી છાપડાજીએ ભાવાર્થની અંદર 207મા કળશના ભાવાર્થની અંદર વાત સમજાવી છે કે દ્રવ્યની અવસ્થાઓ ક્ષણે ક્ષણે નાશ પામતી હોવાથી, અવસ્થાઓ પર્યાયો, દ્રવ્યની અવસ્થાઓ ક્ષણે ક્ષણે નાશ પામતી હોવાથી બૌદ્ધ મતી એમ માને છે કે દ્રવ્ય જ સર્વથા નાશ પામે છે. આવી એકાંત માન્યતા મિથ્યા છે. જો અવસ્થાવાન પદાર્થનો નાશ થાય, એટલે કે જેની અવસ્થા થઈ રહી છે એવા પદાર્થનો નાશ થાય તો અવસ્થા કોના આશ્રય થાય? એ રીતે બંનેના નાશનો પ્રસંગ આવવાથી શૂન્યનો પ્રસંગ આવે છે. એટલે એ માન્યતા બરાબર નથી, એ મિથ્યા માન્યતા છે. અહીંયા કળશ અમૃતની અંદર પંડિત રાજમલજી એ ખંડાન્વય સહિત અર્થ જે કર્યો છે તે આપણે લઈએ.
કળશ 207માં ક્ષણિકવાદીને પ્રતિબોધવામાં આવે છે, એને સમજાવવામાં આવે છે, એને કહેવામાં આવે છે. એ રીતે દ્રવ્યાર્થિક પર્યાર્થિકના ભેદ કર્યા વિના સર્વથા આમ જ છે એમ કેવું તે ન પ્રકાશો. એટલે એમની જે માન્યતા જે છે એમાં પહેલી વાત એમને એ સમજાવવાની છે કે બે વસ્તુ છે, દ્રવ્યાર્થિક અને પર્યાર્થિક. એને જરાક સમજવી જોઈએ. દ્રવ્ય શું છે, પર્યાય શું છે, એનો ભેદ પાડ્યા વિના બસ નાશ પામે છે, ક્ષણિક છે, એ વાત બરાબર નથી. એટલે દ્રવ્યાર્થિક પર્યાર્થિકના ભેદ કર્યા વિના સર્વથા આમ જ છે એમ કહેવું તે ન પ્રકાશો. અર્થાત કોઈ પણ જીવને સ્વપ્ન માત્રમાં પણ એવું શ્રદ્ધા ન હો. એવું એટલે કેવું શ્રદ્ધા ન હો? તો કે અન્ય પ્રથમ સમયનો ઉપજેલો કોઈ જીવ કર્મને ઉપાર્જે છે, કરે છે, અને અન્ય બીજા સમયનો ઉપજેલો જીવ કર્મને ભોગવે છે, તો કે એવું સ્વપ્નમાં પણ કોઈને શ્રદ્ધા ન થાવ. એવું એકાંતપણું મિથ્યાત્વ છે. ભાવાર્થ આમ છે કે જીવ વસ્તુ દ્રવ્યરૂપ છે, પર્યાયરૂપ છે. બૌદ્ધ મતમાં એવું દ્રવ્ય અને પર્યાય એવા ભેદ છે જ નહીં. વેદાંતમાં પણ એવી રીતે ભેદ નથી. એટલે અન્ય મતની અંદર એવી વાત જ નથી. એટલે અનેક અપેક્ષાઓ દ્વારા વસ્તુ સ્વરૂપને એ સમજતા નથી, પ્રકાશતા નથી. જે દ્રવ્ય છે એ દ્રવ્ય અપેક્ષા એ વસ્તુ શાશ્વત છે, ત્રિકાળ છે, એક સરખી રહે છે, નાશ પામતી નથી. આ બધી વાત છે. અને પર્યાય અપેક્ષા એ વસ્તુ બદલે છે. પરિણામો જે થઈ રહ્યા છે દરેક પરિણામ એક પરિણામ કરતા જુદા હોય છે. તો એ વાતનો એમને કોઈને સ્વીકાર જ નથી. સ્વીકાર કરતા એમ કહીએ કે એવો એમને કન્સેપ્ટ નથી કે દ્રવ્ય અને પર્યાય એમ બે વસ્તુ છે, અને એ દ્રવ્યની પર્યાય છે. દ્રવ્ય એવું ને એવું જ રહે છે, બદલાવ જે છે તે પર્યાયમાં છે. આ બધી વાત એમને ખ્યાલ જ નથી. કેમ કે એમને જીનવાણીમાંથી કાંઈ વસ્તુ સ્વરૂપને પ્રાપ્ત કર્યું નથી. જીનેશ્વર ભગવાનની વાણીમાંથી આ જૈન માન્યતાઓ જે છે, સિદ્ધાંતો જે આપણે તારવીએ છીએ, એ બધું સર્વજ્ઞ પરમાત્માની દિવ્ય ધ્વનિમાં આવ્યું છે. અને એ બીજા બધા જે મત જે છે એમને તો કોઈ એવી વાત છે નહીં. એમણે તો પોતાની મતિ કલ્પનાએ એવા દર્શનો ઊભા કર્યા છે. એટલે જેટલા પણ બીજા દર્શન જે છે, વેદાંત હોય, સાંખ્ય હોય, નૈયાયિક હોય, ચાર્વાક હોય, બધા જે કંઈ છે એ બધા પોતાની મતિ કલ્પનાએ એમને સિદ્ધાંતો બનાવ્યા છે. એટલે સત્ય વસ્તુ ત્યાં છે નહીં. એક વાત, એક અપેક્ષા એ સાચી હોય, પણ એ જ વાત બીજી અપેક્ષાએ ત્યાં ખોટી પણ પડે છે. એટલે આ બધી સ્પષ્ટતાઓ કરી અને અહીંયા આચાર્ય ભગવાન તો આપણને એ સમજાવે છે કે આપણે ભૂલે ચૂકે પણ કોઈ એવી ખોટી માન્યતાને એકાંતે પકડી ન લઈએ, અને વસ્તુ સ્વરૂપને અનેકાંત દ્વારા જેવું છે તેવું ભગવાનના જ્ઞાનમાં જેવું આવ્યું છે તેવું સ્વીકારીએ. એટલે અહીંયા પહેલી વાત એ લીધી એમણે કે જીવ વસ્તુ દ્રવ્યરૂપ છે, પર્યાયરૂપ છે, બે વસ્તુ છે. તેથી દ્રવ્ય રૂપે વિચારતા જે જીવ કર્મને ઉપાર્જે છે તે જ જીવ ઉદય આવતા ભોગવે છે, કર્મને ભોગવે છે, એ જ જીવ. અને પર્યાય રૂપે વિચારતા જે પરિણામ અવસ્થામાં જ્ઞાનાવરણ આદિ કર્મ ઉપાર્જે છે, જે પર્યાય ઉપાર્જે છે, તો એ ઉદય આવતા તે પરિણામનું અવસ્થાંતર થાય છે. તેથી અન્ય પર્યાય કરે છે, અન્ય પર્યાય ભોગવે છે, એવો ભાવ સ્યાદવાદ સાધી શકે છે. એટલે સ્યાદવાદમાં આપણને ખ્યાલ આવે છે કે જે સમયે થયું એ પર્યાય, જે કર્મ જે બંધાયા, જે ભાવ થયા, એ પર્યાય જુદી હતી. અને પછી જ્યારે એનો ઉદય આવે છે ત્યારે જ્યારે ભોગવાય છે ત્યારે એ પર્યાય બીજી છે. પણ એ એક જ દ્રવ્યની પર્યાય છે. એમાં દ્રવ્ય જુદા નથી, એ એક જ દ્રવ્યની પર્યાય છે. એટલે આ રીતે સ્યાદવાદથી એ સમજી શકાય છે. આવો ભાવ સ્યાદવાદ સાધી શકે છે. જેવું બૌદ્ધ મતનો જીવ કહે છે તે તો મહાવિપરીત છે. તે કયું વિપરીતપણું? તો કે દ્રવ્યનું આવું જ સ્વરૂપ છે. એક દ્રવ્ય કરે ને બીજું દ્રવ્ય ભોગવે, પેલું દ્રવ્ય તો નાશ પામે, તો કે એ મહાવિપરીત છે. દ્રવ્યનું આવું જ સ્વરૂપ છે. સહારો કોનો? અવસ્થા, તેના અંશ, અર્થાત એક દ્રવ્યની અનંત અવસ્થા એવો ભેદ છે. અર્થાત કોઈ અવસ્થા વિનશે છે, અન્ય કોઈ અવસ્થા ઉપજે છે,
તો એવો અવસ્થા ભેદ વિદ્યમાન છે. આવી અવસ્થાઓ નવી નવી થયા કરે છે, પણ એ દ્રવ્યને સ્વીકારતા નથી. તો એમાં એને સહારો કોનો? એ જે અવસ્થાંતર થાય છે, અવસ્થા બદલે છે, એમાં સહારો દ્રવ્ય ન હોય તો પછી સહારો કોનો? એટલે એમની માન્યતા બરાબર નથી. તો આવા અવસ્થા ભેદનો છળ પકડીને કોઈ બૌદ્ધ મતનો મિથ્યાદ્રષ્ટિ જીવ વૃત્તિમાનનો અર્થાત જેનો અવસ્થા ભેદ થાય છે એવી સત્તા રૂપ શાશ્વત વસ્તુનો નાશ કલ્પે છે. વૃત્તિમાન એટલે દ્રવ્ય. દ્રવ્ય કેવું છે કે એની પર્યાયો થાય છે, એની અવસ્થાઓ થાય છે. એ દ્રવ્ય એક સત્તા રૂપે શાશ્વત વસ્તુ છે. એની ઉત્પત્તિ પણ થઈ નથી, એનો નાશ પણ નથી. તો એનો નાશ એ કલ્પે છે, અર્થાત મૂળથી સત્તાનો નાશ માને છે બૌદ્ધ મત. તેથી એવું કેવું વિપરીતપણું છે. ભાવાર્થ આમ છે કે બૌદ્ધ મતનો જીવ પર્યાય માત્રને વસ્તુ માને છે. પર્યાય માત્રને એ દ્રવ્ય માને છે, વસ્તુ માને છે. પર્યાય જેનો છે એવી સત્તા માત્ર, એવું દ્રવ્ય, એવી વસ્તુ, એને તો એ માનતો નથી. માટે આવું માને છે અને તે મહામિથ્યાત્વ છે. એ મહામિથ્યાત્વ છે. તો એ રીતે આ 207મો કળશ છે. એની પર પૂજ્ય ગુરુદેવ કાંજી સ્વામીએ વિસ્તાર કર્યો છે. એ આજે આપણે શરૂ કરીએ છીએ. કળશ પ્રવચન ભાગ 6, એના પાના નંબર 260, પ્રવચન નંબર 231. वृत्ति अंश भेद तो अत्यंतम वृत्ति मत नाश कल्पनात् अन्य करोति भोक्ति अन्य एकांतम चकास्तु मां क्षणिकवादी प्रतिबोध किया जाता है। एकांत पर्याय को मानने वाला को समझाने में आता है। इति एकांत माचका, इस प्रकार द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक के भेद विना क्या कहते हैं, द्रव्यार्थिक से द्रव्य नित्य है और पर्याय से अवस्था अनित्य है। दो भेद स्वीकार बिना एकांत स्वीकार करना मिथ्यात्व है। એકલા દ્રવ્ય કોઈ સ્વીકાર કરે અને પર્યાય કો સ્વીકાર ન કરે તો એ भी मिथ्यात्व है। और एक पर्याय को स्वीकार करे, स्वीकार को नाश करे, वो भी मिथ्यादृष्टि है। कि किसी जीव को स्वप्न मात्र में भी ऐसा सिद्धांत मत हो, सपने में भी ऐसी कल्पना न हो मैं एक पर्याय मात्र हूँ और त्रिकाली द्रव्य नहीं हूँ, द्रव्य त्रिकाल रहने वाली चीज है नहीं, ऐसे स्वप्न मात्र में पूर्ण हो। समझ में आया? कैसा है? अन्य करोति अन्य भुंजती। अन्य प्रथम समय का उत्पन्न हुआ कोई जीव कर्म का अपराधन करता है, अन्य दूसरे समय का उत्पन्न जीव कर्म को भोगता है। ऐसा एकांत का नाम मिथ्यात्व है। भावार्थ जीव वस्तु द्रव्य रूप में पर्याय रूप दो रूप है। एक पर्याय रूप भी नहीं, एक द्रव्य रूप भी नहीं। क्षणिक बौद्ध मती आदि अति अज्ञानी अनादि से पर्याय को ही मानते हैं और सांख्य मती वेदांत आदि एकला द्रव्य को मानते हैं, पर्याय को नहीं मानते। कारण कि आत्मा
અને आत्मा का अनुभव दो हो गया, दो नहीं, एक ही है सर्वव्यापक, वो भी झूठे અને पर्याय मात्र मानते हैं। ये तो अनादि की दृष्टि बहुत की तो है, पर अनादि अज्ञानी की कौन पर्याय ऊपर लक्ष्य है सब, क्योंकि प्रकट पर्याय है, वस्तु पर्याय के समीप में पर्याय की अपेक्षा से और प्रकट के नहीं आता है। पर्याय की अपेक्षा, उसकी अपेक्षा प्रकट है। हाँ, समझ में आया? अव्यक्त का नहीं, अव्यक्त तो पर्याय की अपेक्षा था, इंद्रियों अपेक्षा व्यक्त है। हाँ, ये बात समझ। हाँ, एक नहीं पदार्थ व्यक्त नहीं, एक नहीं पदार्थ व्यक्त। हाँ, ये कहते हैं, हम कहेंगे विशेष के गाना बीजा श्लोक में ये पर्याय को जब व्यक्त प्रगट पर्याय का अनुभव अनादि का है ना जगत। नवमी ग्रेट अनंत बैल जैन दिगंबर साधो होकर गई पंचमहावतारी, पर सब उसकी दृष्टि पर्याय पर ही है। बहुत सूक्ष्म बात भगवान, ये पर्याय की समीप में सारा असंग प्रदेशी वस्तु है, ये ऊपर दृष्टि करी किया ही नहीं। समझ में आया? रात्रि को थोड़ा कहा था, पहले भी कहा था क्या कि जो असंग प्रदेश है ना आत्मा, तो वो पर्याय है दरेक प्रदेश के ऊपर है। ઉપરના ભાગમાં બધા ભાગમાં ના, એ વાત તો કરતી थी पहला खूब ये पर्याय ऊपर का प्रदेश में है, नहीं अंदर प्रदेशों से ऐसा है नहीं। पर्याय तो अंदर में भी है, ત્યાં असंग प्रदेश पिंड है, तो दरेक पर्याय दरेक प्रदेश ने ऊपर पर्याय है ना। पेट है, अंदर में असंख्य जीव है, असंख्य जी का भाव, पर ऊपर की पर्याय प्रदेश की है इतना नहीं, पर प्रत्येक प्रदेश में ऊपर की पर्याय अंदर में ऊपर है। है उत्पन्न होती है नवी नवी, દરેક પ્રદેશ ઉપર રહે, प्रदेश में ऊपर रहे, अंदर में न जाए। पर्याय ऊपर है, उसका अर्थ क्या कि असंग प्रदेश शरीर वाणी मन एक को रखो, कर्म एक को रखो। असंग प्रदेश का पिंड है, तो ऊपर ऊपर की जब प्रदेश में है ये पर्याय है, ऐसा नहीं। अंतर जो असंग प्रदेश का पिंड है अंदर, उसकी प्रदेश में 5 प्रदेश दीठ ऊपर पर्याय है। समझ में आया? સંખ્ય પ્રદેશોમાં વ્યાપક व्यापक ઉપર ऊपर ना अर्थ ये मात्र क्या है। ऊपर का अर्थ क्या कि प्रदेश असंख्य है, तो प्रदेश दीठ ऊपर पर्याय है, અને અંદર માં ધ્રુવતા है। ऊपर से पर्याय का आवरण है, पर्याय का आवरण पर नहीं, पर्याय आवरण फावरण कुछ है नहीं। समझ में आया? यहाँ तो पर्याय को ऊपर कहते हैं, तो इसकी व्याख्या क्या है, इतनी बात है। तो पर्याय शरीर तो एक को रखो, कर्म को रखो। असंग प्रदेश का पिंड जो है, तो ऊपर की पर्याय है प्रदेश में, इतना नहीं।
असंख्य प्रदेश के अंदर दो है तो दरेक प्रदेश के ऊपर पर्याय है। तो दरेक प्रदेश में ऊपर पर्याय है, तो वो पर्याय को अंतर में झोंकाना सूक्ष्म विषय है प्रभु। અહીંયા બી પ્રદેશ, અહીંયાને અંદર અસંખ્ય ભાવ, દરેક પ્રદેશની અંદર ઉપર 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 पर्याय है। ऊपर एक असंख्य प्रदेश यहाँ है, इसके ऊपर पर्याय ऐसा नहीं, अंदर भी असंख्य प्रदेश है। तो समझ में आया है? क्या समझा तो नहीं कहीं। समझा तो नहीं, વધારે સ્પષ્ટ કરાવે છે એમ કે વધારે સ્પષ્ટ છે। જેમ દેખવા तो ऊपर ऊपर है, इस प्रदेश की पर्याय है ऐसा नहीं। अंदर भी प्रदेश है, परमाणु है ना, ये परमाणु में तो ऊपर ऊपर पर्याय है क्या? हाँ, पर्याय ने द्रव्य भिन्न है, पर कई रीते है कि ऊपर ऊपर पर्याय है, इतना है नहीं, पर अंदर परमाणु है प्रत्येक भिन्न, ये प्रत्येक परमाणु की पर्याय ऊपर ऊपर है, आग ऊपर है ऐसा नहीं है। एम प्रत्येक का प्रदेश आत्मा में है, ये प्रत्येक प्रदेश ने ऊपर ऊपर पर्याय है, अंदर में ध्रुव में प्रवेश करती नहीं है। वो आते हैं ऊपर पर्याय, ऊपर ऊपर आते हैं। अबध पश्चिमा, अबध पश्चिम श्लोक आया ना, अबध पश्चिमा पर्याय ऊपर ऊपर रहती है ऐसा पास। अबध पश्चिम 14-15 का उसमें लिखा है। बहुत समझा क्या जयचंद पंडित ने बहुत स्पष्ट किया है कि इसका अनित्य पर्याय अनित है, तो ये ऊपर ऊपर रहती, सामान्य कैसी नहीं ध्रुव में है। अरे आओ विषय यूं શું થાય હે? બે ભાગ જ છે, એક पर्यायનો ભાગ ને કે દરેકનો ભાગ है, सब भाग है, दो का क्षेत्र भी भिन्न है। पानी में तो दृष्टांत आप्या दिया है क्या कि जल में जैसा तेल, तेल कहते हैं ना, बिंदु पर है तो ये जल में अंदर प्रवेश नहीं करते हैं, ऊपर ऊपर रहते हैं, पर ये जल में ऊपर ऊपर रहते हैं। ये तो दृष्टांत क्या कहना, बाकी जलना जो प्रदेश है अंदर में वो ये ऊपर ऊपर पर्याय क्या है। समझ आया भाई? आपको द्रव्यानी योग ज्ञान विषय से सूक्ष्म है। संयुक्त प्रदेश का दो है यहाँ सारा आत्मा। उन्हें कर्म शरीर में ये तो चीज है, उसमें है नहीं, उससे तो भी नहीं है। पर वो संयुक्त प्रदेश जहाँ जहाँ है तहाँ तहाँ के प्रदेश ऊपर पर्याय है, नहीं कि असंख्य प्रदेश है ऊपर ऊपर की पर्याय है उसकी पर्याय है, ऐसे नहीं। समझ में आया? रात्रि कहूँ तो घणी पहला व्याख्यान में घनी बार आपा कि भाई आप पर्याय ऊपर है अंदर अंदर है, उसका अर्थ क्या? भाव पासन होना चाहिए न, ऐसे ऐसे मानना है ना, अर्थ क्या? भाव में आगे भाव होते ना मोक्ष मार्ग प्रकाश में, भाव पासन ज्ञान में ऐसा है, ऐसा पासन होना चाहिए न। तो आप पर्याय ऊपर है उसका भाषण क्या, अने अंदर में नहीं ही क्या? तो असंख्य प्रदेश प्रभु अंदर है, आत्मा सारा शरीर कर्म से सबसे भिन्न। तो ये सबसे भिन्न होने पर भी असंख्य प्रदेश ये है, दरेक प्रदेश ना पिंड में जो है ये अंदर ना जो प्रदेश है उसमें भी ऊपर पर्याय है।
दया भाई આવી કોઈ વસ્તુ હોય કાગળ વીટીએ એમ નહીં એમ નહીં તો ઉપર ઉપર એ તો ઉપર ઉપર થી એમાંથી તો ફર્સ્ટ कराई लकड़ी को जमा किया ऊपर ऐसे नहीं तो लकड़ी में एक परमाणु जो है प्रत्येक परमाणु ऊपर ना परमाणु ने अंदर ना परमाणु में भी ऊपर ऊपर पड़ जाए प्रत्यक्ष वस्तु से समझ में आया नहीं तो कहना था दूसरा कि क्षणिकवादी અને बौद्ध मती ऊपर ऊपर जो पर्याय है इसमें कोई मानते हैं हम पर्याय का अंदर द्रव्य आधार है पूर्ण ध्रुव बड़े सामने इसकी एम पर्याय बुद्धि वाला अनादि का नवमी ग्रेट अनंत भैर गई जैन साधु पंच महावर्त केवा निरतिचार मिथ्या भाव में ये पर्याय उसकी भी पर्याय बुद्धि थी ऊपर ऊपर की पर्याय नहीं मानते थे ये ध्यान लगी मानते थे कि प्रदेश में दरिया प्रदेश का दौड़ है उसमें प्रदेश ऊपर पर्याय है ऐसा भी मानते थे पर ये पर्याय है इतना ही मैं हूँ बस इतना यही बात है शरीक बहुत की बात नहीं है द्रव्यलिंगी का सारा जोड़ पर्याय ऊपर सारा अनादि का अज्ञानी का है पंच भावत पाले सारा लक्ष्य त्या रुचि प्रेम जानी भी आ कुछ मैं करता हूँ कोई चीज में समझ में आया यहाँ तो क्षणिकवाद ने न्याय पर्याय जो क्षणिक है ये पर्याय पीछे अंदर ध्रुवता पड़ी है ये ध्रुव के ऊपर पर्याय कृति है समझ में आया हमें समाज में जो 14 सामान ऊपर ऊपर करे છે અબધ સ્પષ્ટ आई समय सार तो दरियो है एक एक शब्द दरियो एक एक दरिया में डूबकी खाता पाछा तरतो आवવું જોઈએ डूबकी मारे तो मैंने तरता न खबर है अंदर में सुना नहीं तुम्हें दरिया में मोती लेने को जाते हैं अभी दरिया में बहुत तो जाए कोई बोट भागी हुआ प्लेन टूटी गई हुआ नीचे रतन पड़ा है नीचे बहुत पड़ा है तो ये लेने को जाते हैं ना मानस सुनाए तो ये घूंगली लेकर जाते साथ में घूंगली बाहर रहे त्या से पवन अंदर आवे तो त्या ऊंडो जई सके नहीं तो श्वास जीना भी मरी जाए क्या किया ये लेने को जाते हैं ना क्या एक तो प्रकाश पण चाहिए अंदर જોઈએ काम आँखમાં પણ प्रकाश अंदर और थोड़ो रहते हैं देखने का અને हवा चाहिए जो हवा भी न मरी जाए इसलिए ये घूंगड़ी कैसे रखे ऊपर से हवा अंदर आती है ऊपर ऊपर से अंदर जाते हैं तो हवा में लेने श्वास ले सकते हैं और प्रकाश में दे सकते हैं मोती है गिरा है समझ में आया અત્યારે होते हैं अब तो सुना है ना सब बात है ऐसे भगवान आत्मा अपनी पर्याय को अंदर में झुकाने से हीरा हाथ आता है दरियो पीड़ो से बड़ो वर्तमान पर्याय को इतना मैं हूँ ऐसा न मानकर
पर्याय जिसकी है उसकी सत्ता का अंतर्मुख होनापनों पर दृष्टि पड़ने से उसको दृढ़ दृष्टि कहते हैं, उसको सम्यक दृष्टि कहते हैं और उसको आनंद का पत्ता मिलता है। अतीन्द्रिय आनंद नो सागर भगवान है। तो पर्याय को अंदर में छूटने से अतीन्द्रिय आनंद का तौल जो है, तौल जी नीचे तौलिया है, ध्रुव है, वो पत्ता मिलते हैं। पर्याय में भी आनंद आता है। तो ये पर्याय में आनंद आया तो तुम्हारा थोड़ा प्रशंसा न करूं, चेतना क्यों कहा? एम के पहलू तो ज्ञान कहा, पीछे दृष्टि कहा, पीछे चारित्र बड़ी चेतना क्यों कहा? कला यथा कलश में क्या आनंद कहना है? क्या चेतना का आनंद कहना है? क्या ज्ञान चेतना, कर्म चेतना, कर्मफल चेतना, पर्याय यहाँ भेद है ना? पर्याय में ज्ञान चेतना, स्वरूप की एकाग्रता, सम्यक दर्शन में ज्ञान चेतना, राग में एकाग्रता, ये कर्म चेतना, कर्म के जड़नी है बात नहीं। और राग का फल भोगना ये कर्म फल चेतना, राग का फल भोग ये कर्म फल चेतना। समझ में आया? અને એક વાત તો दूसरी भी है कि क्या जानी हो रही है, क्या मुझे आई है मगज में। शुद्ध ज्ञान चेतना, शुद्ध कर्म चेतना, शुद्ध कर्म फल चेतना, ऐसा तीन बोला या प्रवर्तन साथ में भाई है। अंदर में आनंद स्वरूप की अंदर में देते हैं धूल में, तो पर्याय में शुद्ध उपयोग जो हो रहा, ये शुद्ध उपयोगी उसको कर्म चेतना कहने में आया है। शुद्ध कर्म चेतना प्रतंत्र में शुद्ध कर्म चेतना है तो पर्याय है। ध्रुव गर्भ के झुकने से ये आनंद की पर्याय शुद्ध प्रकट हुई, उसको भी कर्म चेतना कहने में आता है। राग को कर्म चेतना कहा, ये तो अशुद्ध चेतना की क्रिया का पाठ आया। तो शुद्ध कर्म चेतना, कर्म नाम कार्य, शुद्ध चैतन्य वस्तु जो ध्रुव है, उसका अवलंबन में से, उसका आश्रय से, उसका ध्येय से, उसका लक्ष्य से पर्याय में शुद्धता जो प्रकट हुई, ये शुद्धता को भी शुद्ध कर्म चेतना कहने में आता है। जसपाली जेनी बात से भगवान सुनता है, मार्ग ऐसा है कोई होगा। अनेक शुद्ध कर्म फल चेतना, ये शुद्ध कर्मते ये निर्मल उत्पन्न हुई, उसका आनंद का वेदन है, ये शुद्ध कर्म फल चेतना है तो पर्याय। कर्म शब्द यहाँ रागे नहीं, जड़े नहीं, अब तो अपना कार्य शुद्ध चैतन्य का दृष्टि से हुआ, ये कार्य को अनुभवना, ये शुद्ध कर्म चेतना का अनुभव हम कहना है। और उसका फल आनंद रूप भोगना, ये शुद्ध कर्म फल चेतना कहने में आती है। बात ये भी से बापू आप तो वितराग नो मारेंगे वो सूक्ष्म અને એ સરોગીને સિવાય આ વાત ક્યાંય है नहीं। अंदर में कबूलात आवे अंदर में कि आ चीज ऐसी है, ये चीज दूसरे है नहीं चाहिए। समझ में आया? तो कर्म चेतना, कर्म फल चेतना है ना, दो प्रकार हुआ। समझे? राग को वेदना, ये कर्म चेतना, ये शुद्ध कर्म चेतना।
और राग का सुख दुख का वेदन, ये कर्म फल चेतना, अशुद्ध चेतना। ये तो ये पर्याय અને ये पर्याय पीछे पर आए ध्रुव, ये पर्याय भी ऊपर है। स्वयं प्रदेश के दौर में सारा दिन कर्म में करके कुछ छूटे नहीं, एक दर दूसरा दर को सुनते ही नहीं कभी चिंता में। ये तो तीजी का सुनाया समय साथ अपना धर्म को चुनते हैं, पर को चुनते नहीं। इतनी बात पर से भिन्न करने को कहा। अरे पीछे जाए अंदर में राग को कर्म चेतना कहने में आया है, तो कर्म चेतना भी द्रव्य को स्पर्शती नहीं। समझ में आया? और पीछे ऐसा लो कि शुद्ध चैतन्य वस्तु है, उसका अनुभव होकर जो शुद्ध परिणमन हुआ, ये शुद्ध चेतना, शुद्ध उपयोग की चेतना, कर्म चेतना, ये भी ऊपर ऊपर पर्याय में है। भगवान तुम कौन सा बात कर? અને એ આનંદના વેદન, ये शुद्ध कर्म फल चेतना, वो भी पर्याय है। ये पर्याय के पीछे अंदर में दरेक स्थान में असंख्य प्रदेश में जहाँ जहाँ शुद्ध उपयोग उत्पन्न होता है, भी असंख्य प्रदेश में, ऊपरा प्रदेश में नहीं, अंदर अंदर बद्धे प्रदेश में ऊपर उत्पन्न होता है। समझ में आया? तो ये पर्याय के पीछे अंदर में दौड़ पड़ा है ध्रुव। इसको यहाँ द्रव्यार्थी नहीं का विषय द्रव्य दृष्टि कहते हैं। आया नहीं है? द्रव्यार्थी पर्यार्थी आया नहीं? द्रव्यार्थी के पर्यार्थी के भेद विना किसे सर्वथा ऐसा कहे ना, किसी जीव को स्वप्न मात्र में ऐसा श्रद्धा मत हो। हाँ, तो अपना जानना अपेक्षा नहीं बात है। हो गठन मात्र करना पर्याय है, अंदर भी ऐसी बात नहीं है, ये तो वाचक है। पर अंदर में पर्याय न द्रव्य दो की स्थिति मानना, एक को न मानना, नहीं को मानना, ऐसे स्थिति है नहीं। क्योंकि पर्याय में तो कार्य होता है और द्रव्य में कार्य होता नहीं। ये कार्य पर्याय में होता है। राग का हो कि शुद्ध वर्णति नीचे शुद्ध कर्म को के कर्म चेतना, ये सब पर्याय में है। अने पर्याय कोई मानना, जिसको कर्म शुद्ध फल चेतना पूर्ति है, तो पर्याय को द्रव्य को दो ही को मानते हैं। समझ में आया? पर जिसको राग का ही वेद निकला है, दया दान व्रत भक्ति का परिणाम बस इतने इस ध्यान ज्ञान संतुष्ट है, उसको पर्याय मात्र को आत्मा माना। अंदर भगवान ध्रुव चैतन्य है, ये पर्याय को अंदर जे पर्याय में राग का कर्तृत्व रूप परिणमन है, ये पर्याय अंदर में नहीं जा सके। क्या किया? ये पर्याय है ऊपर, ये पर्याय में राग का दया दान का विकल्प का करता है, ये पर्याय अंदर में जा नहीं सके, ये तो चाहेगी। समझ में आया? पीछे की पर्याय उत्पन्न हुई न अंदर प्रवेश किया, दो एक समय है।
क्या कहते हैं? समझ में आया? શું કહ્યું? क्या किया? એ તો બરાબર है, પણ જે પર્યાય રાગ તરફથી ઝૂકી કરતાપણા में परमी है, ये पर्याय अंतर्मुख नहीं हो सके। कारण की पर्याय तो व्यय हो जाता है। अरे व्यय होते हैं, नई पर्याय जो उत्पन्न होती है नैव के आश्रय से ये उत्पन्न हुई અને અંદર ઝૂકી દો સમય એક એનું માતા क्या किया? ये समझ में आया? झुक अंदर में झुकने की पर्याय है, राज की पर्याय करता ही पर्याय अंदर में नहीं झुक सकती। अरे दूसरी पर्याय तो है नहीं ये उस समय, ત્યારે दूसरी पर्याय द्रव्य पर लक्ष्य करने से आती है। हाँ हाँ हाँ, और वही पर्याय अंदर झुकी एम कहने में आता है। तत्वज्ञान बहुत सूक्ष्म है, वो कोई बाहर થી કલ્પ્યું છે। અનંત કાળમાં એની વાસ્તવિક સ્થિતિનું અંદર ભાષણ કર્યું નથી, किया ही नहीं। समझ में आया? तो यहाँ कहा कि द्रव्यार्थिक पर्यायिक दो ही, तो पर्याय को एम कहना कि पर्याय को उतार्थ आश्रित करना, कई पर्याय है। जे पर्याय राग की कर्तापना में कर्म पर्याय है, कर्म चेतना, ये पर्याय तो बस क्या रहेगी अशुद्ध। ये पर्याय अंदर में जा सके तो क्या जी सकता है? पीछे की पर्याय उत्पन्न होकर अंदर में झुकी उत्पन्न हुई, तो ये किस समय है? समझ में आया? आई तो ये कहना है कि पर्याय मात्र को मानना ये भी एकांत है, और एकांत द्रव्य को ही मानना एकांत वस्तु का स्वरूप ऐसा है नहीं। समझ में आया? ये बस ऐसा था। किसी जीव को सपना में श्रद्धा मत जाओ, ऐसा कैसा? अन्य करोति अन्य भुंजती। अन्य प्रथम समय का उत्पन्न हुआ कोई जीव कर्म का अपराधन करता है, अन्य दूसरे समय का उत्पन्न हुआ जीव कर्म को भोग, ऐसा एकांतपणा मिथ्यात्व है। बात इस प्रकार है, जीव वस्तु द्रव्य रूप में तो ये भी है। इसने द्रव्य रूप से विचार करने पर तो जीव कर्म का अपराधन करता है, वही जीव उदय आने पर भोगता है। ऐसे ही 102 मत ऐसा कहा कि जे समय राग का करता है यही समय भोगता है। आई दूसरी रीति कहना है, आई तो संयोग से बात करना है। क्या किया? समझ में आया? 102 गाथा समय सार की, जे समय करता है राग का यही समय भोगता है, उसका समय भेद नहीं। आए हवे तो समय भेद लेना करेंगे, ये सत्य है कि वो भी सत्य है ना, ये सत्य है। कई अपेक्षा से कर्म नहीं अपेक्षा से बोली, अपना भाव ने अपेक्षा था। विकार करना विकार ना भोगना समय एक है, यहाँ कर्म की अपेक्षा लेना है। देखो, जीव वस्तु द्रव्य है, द्रव्य विचार करने पर जीव कर्म का अपराधन करता है, वही जीव उदय आने पर भोगता है। जीव द्रव्य अपेक्षा ये पर्याय से विचार करने पर जिस परिणाम अवस्था में ज्ञानावधि कर्म का अपराधन किया, देखो जिस परिणाम अवस्था में
ज्ञानावरण आदि कर्म का उपदन किया है, उदय आने गुण की जड़ है, जड़ नहीं अपेक्षा यहाँ है। जड़ जो बंधा उसका समय भिन्न है और उसका उदय आने के भोगने का समय भिन्न है। समझ में आया है? देखो, जीव वस्तु परिणाम अवस्था में ज्ञानावरण आदि कर्म का उपदन करता है, उदय आने पर उस परिणामों का अवस्थांतर होता है, दूसरी अवस्था भोगती है। तो जड़नी अपेक्षा बात है, ये समय कर्म किया, ये कर्म का उदय आते हैं भोगता है, तो कर्म की अपेक्षा बात है भाई। कैसे 102 जी कहा कर्ता कर्म में, ये तो वही समय करता न वही समय भोगता, भाव की बात है। यहाँ तो कर्म जिस समय बंधा, ये समय कर्म का भोगता नहीं होता। समझ आया? आई अपेक्षा पार भगवान નો માર્ગ ઘણો સૂક્ષ્મ ગહન માર્ગ છે પ્રભુ। લોકો ઉપર ઉપર ટપકે માની લે है ને, ऐसी तो गहन विषय है प्रभु। तो यहाँ ये बड़ी पीछे रखो, आई तो कर्म रजकर्म पर वस्तु है, उसका फल वो समय नहीं, इतना बताना है। समझ आया? ज्ञानावरणी क्या ज्ञानावरणी कर्म का जिस परिणाम अवस्था में ज्ञानावरण कर्म प्रदर्शन किया करता है, उदय आने पर उन परिणामों का अवस्थांतर होता है, जिसने अन्य पर्याय करती है, अन्य पर्याय भोगती है। जड़ ने जीव से किया, इस समय तो करता बस, अरे પછી ઉદય આયા ત્યારે ભોગ રે જ્ઞાનાવરણી में, ये समय भेद हो गया। संयोग ने करना ने भोगना है, समय भेद है। अपना भाव का करना ने भोगना, ये समय भेद नहीं। क्या किया એના ખ્યાલમાં તો સ્પર્શાના चाहिए ને, એમને માનना ही कुछ चीज है। ज्ञान में अपनी निर्मल परिणति करे ते भोगवे, इसे पण एक समय, અને વિકાર की परिणति करे भोगवे भी एक समय। હવે जिस अवस्था से ज्ञानावरण कर्म बंधा, ये अवस्था कर्म का उदय काल में ये अवस्था रही नहीं, उदय में बीजी अवस्था भोगती है। पर कर्म की अपेक्षा बात है। समझ में आया? आई तो बात ऐसी है, थोड़ो भी न्याय पड़े तो वस्तु आगे पलटी जाती है, वस्तु स्थिति सिद्ध नहीं होती। तो यहाँ तो कर्म की अपेक्षा दिया। ये आचार्य एम कहे कि जे समय करता ते समय भोगता, ये आचार्य एम कहे कि जे समय कर्म बंधा ते समय उसका भोगता नहीं। समझ आया? थोड़ा विचार पण करना, साथ में सांभळी नहीं विचार करना, एमने थोड़ा धीमे धीमे कहते हैं, सारो मिलान होना चाहिए साथ में। समझ में आया? जे समय अवस्था में जे परिणामों का अवस्था में एम क्या ने, जिस परिणाम अवस्था में ज्ञानावरण आदि कर्म का प्रदर्शन करता है, उदय आने पर इन परिणामों का अवस्थांतर होता है। एक परिणाम नहीं रहते, उदय आया कर भोगवाना परिणाम ये नहीं रहते हैं, दूसरा परिणाम होता है। आई बात है।
हाँ, इसलिए अन्य पर्याय करती है ना, अन्य पर्याय भोगती है। देखो है? ये अवस्थाई कर्म किया, ये अवस्थाई भोग्या नहीं, उसका उदय आया कर दूसरी अवस्था भोग्या। समझ में आया भाई? यही तो सही विचार करके अंदर ये आप वो करके हमें निर्णय करना चाहिए। ऐसे में से माना ये कोई चीज नहीं। ऐसे उगे उगे तो अनंत बार माना है, बाहर 11 भी पड़ गई है। क्या किया? मैंने बस पर्याय करती है, परिभूत ऐसा भाव साधवा साध सकता है। देखो जो ऐसा भाव साधवा साध सकता है। कथनचित ही पर्याय करती है અને कथनचित दूसरी पर्याय बोलती है। कर्म ની અપેક્ષા અને વિકાર ને અવિકાર ની અપેક્ષા है तो अपना भाव ने अपेक्षा जिस समय जो भाव करते हैं इस समय उसका भोगता है। चंद्र हाँ આવું છે ભાઈ, આવું મોરાશ ક્યાં હોય માણસને? નિવૃત્તિ પ્રવૃત્તિ આવી શેઠ, પ્રવૃત્તિ આકૃતિ સંસારની બીડીયું તમાકુ ને या तो परमात्मा त्रिलोकना नाथ सर्वज्ञ देव या तो वाणी है। संतो सर्वज्ञ वाणी आदित्य होकर कहता है। आदित्य समझते हैं? આજનો સ્વાધ્યાય અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ। 207 કળશ ઉપર પૂજ્ય ગુરુદેવે જે વિસ્તાર કર્યો છે એનો શેષ ભાગ આપણે આવતા સ્વાધ્યાયમાં લઈશું।